Hello everyone, my name is Ram Dhameja. Welcome to my channel. I am a successful derivatives trader and I have been in this market since 2006. I have been trading options since 2006 and I actually turned profitable in 2018, and since 2020 I have been doing this as a full-time profession. So today I'm going to discuss a very interesting topic over here, which is basically what are the mistakes that the derivatives trader tend to make in this particular market. And this has been true for me as well, because I have made all these mistakes throughout my trading journey, and from these mistakes only I have learned, and finally I became profitable in 2018, as I said. And since 2020, when I have become a profitable full-time trader, all the years have been highly profitable, and now my options book size is also pretty decent, and the quantum of profits generated are also decent. But it is a very very long journey that each one of us has to go through. सबको इस जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है, and we all learn through our mistakes, and धीरे धीरे करके this is how we improve, we learn, and we finally become profitable, and we can finally make it a full-time profession. सो आज मैं आपके साथ 10 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो हर डेरिवेटिव ट्रेडर कभी ना कभी अपने करियर में करता है, एंड हाउ कैन वी kind of not commit these mistakes, not do these mistakes, and how can we improve our trading. So here we go. Number 1, सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक है मिसयूजिंग लेवरेज. अब डेरिवेटिव्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको लीवरेज लेना पड़ेगा, बट उस लीवरेज को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करते हैं विल डिपेंड ऑन हाउ एफिशिएंट योर सिस्टम्स आर. तो अगर आप माइंडलेस लीवरेज लेते हैं तो इट इज़ वेरी इजी इन डेरिवेटिव्स टू गेट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. आपकी कैपिटल पूरी ज़ीरो हो सकती है, एंड इवन अ स्मॉल मूवमेंट ऑफ द मार्केट अगेंस्ट यू can ensure that the entire capital is wiped out. So it is very very important in terms of using the leverage properly, and also ensuring that the leverage that you are using is only a percentage of your total book size. So for example, अगर आपको exchanges से या market से 2x 3x leverage मिल रहा है, so there are ways to actually get 10x leverage also, because you can buy hedges and so on and so forth. But आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2x leverage का इम्पैक्ट होगा वर्सेस जो 10x लीवरेज का इम्पैक्ट होगा, अगर आपके ट्रेड्स आपके अगेंस्ट चले जाएं तो आपके अकाउंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द लीवरेज दैट यू टेक इज़ वेल विद इन योर कंट्रोल. नंबर 2, इग्नोरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन एनी ट्रेडिंग सिस्टम इज़ कि आपका रिस्क इज़ टू रिवॉर्ड का क्या रेशो है. अगर आपका रिवॉर्ड रिस्क से ज़्यादा नहीं है तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम कभी ना कभी फेल हो जाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ रिस्क एंड अ रिवॉर्ड रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:2. मतलब ₹1 का अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको ₹2 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए मिनिमम. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिस्टम दैट आई ट्रेड विद, 1:2 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड. एंड उसके अंदर आपको ये इंश्योर करना होता है कि जब आपको रिवॉर्ड का परसेंटेज है, जो जितने टाइम आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो भी ज़्यादा हो. सो इफ़ यू हैव अ सिस्टम ऑफ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड एंड योर रिवॉर्ड परसेंटेज टाइम इज लेट्स से 70%, देन यू आर गोइंग टू मेक कंसिस्टेंट मनी इन अ वेरी गुड वे. तो इसी तरीके से आपको अपना सिस्टम्स कंटिन्यूसली रिफाइन करते रहना चाहिए, सो दैट योर रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलवेज फेवरेबल. नंबर 3, ओवरलोडिंग अ सिंगल पोजिशन. ये मिस्टेक हम हमेशा करते हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेड अगर हम पकड़ लेते हैं, सो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन और दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और दैट पर्टिकुलर ट्रेड, and when it goes adverse we try to protect that one only and not focus on the other ones. So इसके अंदर what we need to do is we need to have positions in different instruments and try to keep a balance, not be highly focused on one particular instrument or one particular trade. Each trade should not be more than 1% of your total corpus if it goes against you. So if you follow this particular rule, I think you should be fine. Number 4, diversifying too quickly. So it is actually a counter to the number 3 that I said, but this is also a very important thing. Why? Because if you are trading into instruments which you don't understand, तो आप बहुत भटक जाएंगे. आप ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाएंगे कि ओ किसी ने ये बोला कि इस वाले पर्टिकुलर काउंटर में ट्रेड कर लेते हैं, इस वाली पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड कर लेते हैं, और आप उसमें चले जाते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द नुआंसेस ऑफ दैट. दैट इज़ ऑल्सो अ बिग मिस्टेक.
So whatever you are trading, whichever instrument you are trading, please diversify, but also know the in and out of that particular instrument. Only then you will be able to make profits consistently. Number 5, which is the most important, failing to cut losses early. इसके अंदर मेरा एक सिस्टम है कि आपको लॉसेस हमेशा आप स्टॉप लॉस के साथ सिस्टम के अंदर डाल के रखने चाहिए. लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज वो एक मेंटल स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि हाँ अगर इतना मेरा लॉस होगा तो मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा. उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब लॉस होना शुरू होता है तो योर माइंड फ्रीजेस, यू कांट टेक एक्शन, एंड देन वो छोटा लॉस जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा लॉस और बड़ा हो जाता है जब तक आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाती. तो ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, कि सिस्टम में वो पर्टिकुलर लेवल आया, आपका ट्रेड कट हुआ एंड यू आर आउट, सो दैट यू रियली डोंट नीड टू बॉदर अबाउट that small loss actually becoming a big loss. This according to me is a very fatal flaw that a lot of traders fall into, and because of that their trading capital completely gets wiped out. Number 6, neglecting position sizing. So this is also related somewhere to the earlier points that I have said, but इसके अंदर position sizing becomes very important, because आपको ये देखना है कि अगर मेरे कैपेसिटी 100 लॉट लेने की है तो मैं 300 लॉट तो नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा. आपको लगेगा कि 300 लॉट से मैं जल्दी पैसे कमा लूँगा, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वन बैड ट्रेड will wipe out your entire capital. So it is very critical to have position sizing according to your limits, according to the capital that you have. Once that is done, then you can play for a longer time. Number 7. Now these are the behavioral mistakes that I'm going to talk about. So number 7 is trading without a strategy. अगर आपके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है, आप मार्केट में रोज़ आते हैं और सोचते हैं कि चलो जैसा मार्केट का बिहेवियर होगा मैं उस तरीके से ट्रेड कर लूँगा, सो यू आर नेवर गोइंग टू सक्सीड. व्हाट यू नीड टू डू इज़ हैव अ प्लान, हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस, हैव अ सिस्टम इन प्लेस. एंड मेरे हिसाब से आपका सिस्टम और स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे. So if you are playing a delta neutral strategy, you should ensure that you play that delta neutral strategy every day. If you are playing a weekly or a monthly strategy on one positional trade, then you should stick to that. Of course, the market conditions will vary, and you will have to take actions accordingly. You have to do adjustments accordingly. But आपकी strategy जो है वो consistency होनी चाहिए strategy में. और स्ट्रैटेजी के जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो 3 महीने 6 महीने साल में जाकर के दिखते हैं, नॉट एवरी डे. सो यू कैन हैव बैड स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस फॉर अ वीक, 10 days, but if your strategy is strong enough, robust enough, then after 15 days the strategy results will reverse and you will see कि आपका मंथ फिर भी पॉजिटिव में क्लोज हो गया. सो हैविंग अ स्ट्रैटेजी इज वेरी क्रिटिकल. नंबर 8, ओवर कॉन्फिडेंस विद प्रॉफिट्स. ये हम सबके साथ होता है. आपने देखा होगा कि आपका जो वर्स्ट डे है ट्रेडिंग का वो यूजुअली आपके बेस्ट डे के बाद ही आता है. सो एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सो जब भी हमारे को प्रॉफिट होता है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि वी आर किंग्स एंड वी कैन डू एनीथिंग एंड मार्केट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू आवर विशेस. ऐसा कभी नहीं होता है. जब भी आपको प्रॉफिट हो, जब भी आपको लॉस हो, यू शुड बी इनडिफरेंट टू दैट. yes, you can have your own successes, own celebrations, little bit in your own corner कि हाँ I did well today, I'm happy, but never let that win thing get into your head. हमेशा एक बैलेंस्ड हेड रखिए. एंड प्रॉफिट्स हैं आए हैं आज, कल लॉस आएगा, और कल लॉस आया तो परसों प्रॉफिट्स आएंगे. इट इज़ दैट सम टोटल विच एट द एंड ऑफ द ईयर विच विल मैटर कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो पाए हैं कि नहीं. नंबर 9, लेटिंग इमोशंस डिक्टेट डिसीजंस. ये हम सबके साथ होता है. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिवेंज ट्रेडिंग, जो सबने सुना है. सो इसीलिए हमारा सिस्टम अगर है तो हम उतना ही बैलेंस्ड रह पाएंगे. जब तक आपका सिस्टम चल रहा है आपके इमोशंस प्ले में आएंगे, लेकिन कम आएंगे. जहाँ आपने डिस्क्रिशनरी ज़्यादा शुरू कर दिया वहाँ पे आपको इमोशन के साथ भी बहुत डील करना पड़ेगा. एंड ट्रेडिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इज़ मोर ऑफ अ इमोशनल गेम, मोर ऑफ अ रिस्क टेकिंग गेम, मोर ऑफ अ बैलेंस्ड गेम इन टर्म्स ऑफ वेदर यू आर ट्रीटिंग इट एज अ बिजनेस और नॉट. सो ट्रेडिंग को आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है. एंड प्रॉफिट लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन. सो दिस प्रोफेशन हैज़ many benefits, like it gives you the complete freedom to trade from anywhere in the world. You are not dependent on anyone, you're not answerable to anyone but yourself. तो आप खुद के आंसरेबल हैं क्योंकि आपका बिजनेस है. तो इसके अंदर आपको अपनी इमोशंस नहीं आने देनी है. यू हैव टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस. ईजियर सेड देन डन, बट दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू वर्क टुवर्ड्स. नंबर 10,
चेजिंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। इसके अंदर होता क्या है कि एक ना मार्केट में एक हर्ड मेंटालिटी बन जाती है कि यार ये चीज़ अच्छी है या ये ट्रेड अच्छा है या मार्केट यहाँ से गिरेगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो चलो उसका ट्रेड ले लेते हैं हम। Never do that. Have your own analysis, work towards that analysis, put in a lot of hours towards that analysis, and then take a call. Yes, the call might be right or wrong. That is a different thing. But at least आपने अपने खुद के एनालिसिस से एक कॉल लिया है। आपने किसी और के कहने पे या टीवी देख करके या कहीं पढ़ करके या यूट्यूब देख करके या कुछ और करके नहीं लिया है। दिस इज योर ओन एनालिसिस. So if your own analysis is there, there is going to be much more conviction for you टू स्टिक इन टू दैट ट्रेड एंड आपको पता होगा कि मेरे को इस ट्रेड से कब बाहर निकलना है, कब अंदर आना है. So that's it. These were the 10 top 10 mistakes that each of the traders make. I hope आपको ये अच्छा लगा है and आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा. And if you like the content, please do subscribe to my channel. I share my market thoughts every day on the markets के अंदर क्या हो रहा है. And from time to time, I do these videos also which help you become a better trader and an investor. So see you soon and thank you so much for listening to this. Bye bye.